A very, very good morning, dear students. I am Neha Raghuvanshi, Assistant Professor of Harda Degree College, and welcome here on the official YouTube channel of Harda Degree College. This video is for all the second year students. Today we are going to discuss a very, very important topic which has been given in your English, okay, in your syllabus for second year students. एफसी फर्स्ट में आपको जो इंग्लिश में है ना आपने सिलेबस देखा होगा सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर दैट इज द कंजंक्शंस है ना। तो आज हम लोग कंजंक्शंस देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स इंट्रोडक्शन व्हाट आर द कंजंक्शंस एक्चुअली। सो ऑल द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स प्लीज ओके बी हियर and just watch this video properly. Okay, so let's start. What are the conjunctions? Okay, so before going to start the conjunctions, just we talk about the contents. Okay, what we are going to discuss under the conjunctions actually, what are the contents? First, we will discuss introduction to the conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं है ना, basically what are it or how to use it, how to use the conjunctions properly in the sentences. Then we will be discussed about the types of the conjunctions. Means once you have understood properly what are the conjunctions, basically how to use it, what is the role of the conjunctions in the sentences, then we will come ahead and move towards the types of the conjunctions. There are so many types of the conjunctions. Okay. तो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनके जो रूल्स होते हैं कंजंक्शंस के उनके तरीकों के अकॉर्डिंगली हम कंजंक्शंस को सेंटेंस में प्रेफर करते हैं यूज करते हैं सो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कस अंडर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस then types of conjunctions के बाद then we will be move towards the some practical applications of the conjunctions in which we will go through the some practical questions, some practical examples, okay, in which we will discuss its proper use. So I'm sure that आपको example से और ज्यादा clear हो जाएगा, ठीक है, कि conjunctions क्या होते हैं और हमें किस situation में कब हमें कौन सा type है ना प्रॉपरली हमें यूज करना है। ओके, देन कंक्लूजन। सो लेट्स बिगिन विथ द इंट्रोडक्शन टू द कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखिए व्हाट हैपेंड एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो आपका ग्रामर है ओके, तो इन द ग्रामर द वेरी वेरी बेसिक टॉपिक्स ऑलरेडी यू हैड कवर इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो। लाइक स्टूडेंट्स को नाउन समझ में आ जाता है ना, हम प्रोनाउन समझ लेते हैं, यू अंडरस्टूड वेरी वेल द adjectives, adverbs, okay. But what happened actually in the basic language, जो basic हमारी English language होती है, in which or we can say in a conversation, we most of the time we use the prepositions and conjunctions in the sentences. और वहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, है ना, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे कंफ्यूज्ड how to use the prepositions, how to use the conjunctions in the basic English language. So this is very, very important to understand the conjunction and its role in the sentences actually. Okay, so watch this video very, very carefully. Okay, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू द कंजंक्शंस। लेट्स मूव अहेड। देखिए अगर मैं कंजंक्शंस की बात करूं तो अभी मैं सिर्फ इसको अगर दो वर्ड्स में डिफाइन करूं, मतलब लेटर वी विल बी डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर डेफिनेशन एंड ऑल, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट जस्ट इन द टू वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ द टू वर्ड्स, तो आई वुड से कंजंक्शंस are nothing but this is the, what are this, joining words. What I am saying, कंजंक्शंस क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, ऑन विच बेसिस आई एम सेइंग दैट दीज आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स, सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। she went to the store, okay, she is my subject, she went to the store and bought groceries.
वो स्टोर गई और वहां से उसने क्या खरीदा, कुछ ग्रोसरीज उसने परचेज की, उसने खरीदी, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द स्टूडेंट्स, डिड आई यूज द कंजंक्शन ओवर हियर, क्या मैंने कोई कंजंक्शन यूज किया है? यस, देखिए यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज किया है वो क्या है आपका एंड। ओके, आप अगर एंड को अभी मैं हाइड कर देती हूँ सपोज, है ना, ये मैंने इसको ब्लॉक में इनक्लोज कर दिया है। एंड के पहले आप देखेंगे देयर इज अ फर्स्ट सेंटेंस दैट शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई, ठीक है, वह स्टोर गई, शी वेंट टू द स्टोर। और सेकंड आप देखेंगे बॉट द ग्रोसरीज, उसने क्या परचेस किया, ग्रोसरीज उसने खरीदा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्चुअली जो एंड वर्ड है हमारा, एंड इज अ कंजंक्शन and connects the two actions of going to the store and buying the groceries. It means how many action actually performed over here in this sentence में कितनी action perform हो रही है, there are the two actions. First, एक तो जाना है ना, she went to the store मतलब वो जा चुकी है, वो स्टोर गई, तो उसने एक तो जाने का काम किया। और जाने के बाद उसने वहां पे सेकेंड एक्शन क्या परफॉर्म की, बाइंग द ग्रोसरीज, ओके, बॉट द ग्रोसरीज मतलब उसने ग्रोसरीज खरीदी। तो बाइंग भी हो रही है और जाने का एक्शन भी हो रहा है, गोइंग भी हो रहा है, देयर आर दीज टू काइंड ऑफ द एक्शन बी परफॉर्म्ड हियर। और इन दोनों को मुझे आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो विथ हेल्प ऑफ द कंजंक्शंस इजिली वी कैन कनेक्ट दिस बोथ काइंड ऑफ द एक्शन, ओके, जो परफॉर्म हो रही है सेंटेंस में। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एंड। सो एंड कनेक्ट द टू एक्शंस हियर ऑफ गोइंग टू द स्टोर एंड बाइंग द ग्रोसरी। तो अब आपको एक एग्जांपल से इतना समझ में आया होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कंजंक्शन एक्चुअली। क्लियर? लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल फर्दर। आई कांट गो टू द पार्टी बिकॉज आई एम सिक। आई कांट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं जा सकता। दिस इज द वन सेंटेंस, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट सेंटेंस है। और सेकंड सेंटेंस आपको गिवन है, दिस इज योर सेकंड सेंटेंस एंड दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। आई एम सिक, मैं बीमार हूं, ओके। अब मुझे इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। तो मैंने क्या यहाँ पे यूज किया, कंजंक्शन। आई हैव यूज्ड द कंजंक्शन हियर बिकॉज। सो बिकॉज एक्ट एज ए कंजंक्शन ओवर हियर। बिकॉज क्या बताता है, बिकॉज शोज द रीजन वाई द स्पीकर कांट गो। बिकॉज हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, बिकॉज हमें शो करता है रीजन, है ना, हमें वजह पता चल रही है, हमें वो कारण पता चल रहा है, हमें रीजन पता चल रहा है कि वाई द स्पीकर कांट गो टू द पार्टी। जो स्पीकर है जो बोल रहा है कि आई कैन नॉट बी गो टू द पार्टी, बट वाई, देयर मस्ट बी द सम रीजन ना कुछ रीजन होगा। और वो रीजन हम यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज के कारण। तो बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका कंजंक्शन, क्लियर, विच शोज द रीजन। अगर स्पीकर ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो उसके पीछे हमें रीजन यहाँ पे पता चल रहा है। क्लियर? आई एम सिक, क्योंकि वो क्या है, बीमार है, क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। क्लियर? तो हम आप देखोगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस था और ये जो मेरा सेकंड सेंटेंस है, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं ज्वाइन कर पा रही हूँ, एंड कैन बी कन्वर्ट इनटू द वन सेंटेंस ओनली। मेरा सिर्फ अभी एक ही सेंटेंस में काम हो गया, मैंने दो अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट करके I have converted it and tried to make only the one single sentence just because of the conjunction, with help of the conjunction. Clear? Okay, so what are the conjunctions basically? Conjunctions are grammatical elements. ये वो grammatical elements होते हैं that link the words, the phrases or the entire clauses within the sentences. जो sentences में है ना connect करते हैं, join करते हैं, two different sentences को join करते हैं, दो different clauses को join करते हैं, दो words, phrases को join करते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें हम इसलिए ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इनिशियली at the earlier stage of this video, I told you that conjunctions are the joining words. They serve as a critical components in constructing the coherent and meaningful sentences, affecting the flow and the clarity of the communication. With help of the conjunctions, हम जब उस sentence को read करते हैं, so चीजें जो है उसमें जो मैसेज कन्वे किया गया है, the things will be more clear, है ना, बहुत ज्यादा क्लियर होती है, क्लियरिटी हमें पता चलती है। क्लियर?
सो रोल्स जो अगर हम देखें, रोल की बात करें सेंटेंस में, तो जो कंजंक्शन का रोल होता है, इट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय ज्वाइनिंग द सिमिलर एलिमेंट्स। कई बार ऐसे सेंटेंसेस अभी हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू आपके सामने आते हैं, जिसमें वी टॉक अबाउट द सिमिलर थिंग्स और वी कैन से द सिमिलर आइडियाज के बारे में हम बात करते हैं, तो उनको ज्वाइन करने का भी ये काम करते हैं। और कनेक्टिंग द रिलेटेड आइडियाज, है ना, जैसे कि जो भी रिलेवेंट आइडियाज है, अभी मैं और भी एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी, तो this particular theory will be more clear to you, and thereby allowing the more complex expressions of the thought and enhancing the logical progression of arguments and statements. तो कंजंक्शन का जो रोल होता है सेंटेंस में भी, है ना, चाहे वो सिमिलर इंफॉर्मेशन को लेके हो या कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है सेंटेंसेस में, सो जो भी उसकी लॉजिकल प्रोग्रेशन है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, उस स्टेटमेंट्स को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. So this is, we can say that conjunctions are very, very important in our language. Clear? Okay, so let's read these sentences further. The first sentence is that Mohan and Sohan are neighbors. Okay, तो मोहन एंड सोहन, ठीक है, ये दोनों मेरे सब्जेक्ट्स हो गए हैं. अब हियर वी टॉक अबाउट द सिमिलर थिंग्स कि मोहन एंड सोहन आपस में क्या है, नेबरहुड है. इट मीन्स हियर वी बोथ लिव इन द सेम नेबरहुड. दोनों क्या रहते हैं, दोनों सेम नेबरहुड में रहते हैं. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, सेम काइंड ऑफ द पैरामीटर वी कैन से. सो व्हाट इज द कंजंक्शन हियर, एंड. ओके, इसलिए मैंने इसे एंड से यहाँ पर क्या किया है, कनेक्ट किया है और ज्वाइन किया है, बिकॉज यहाँ पे मैं सेम चीजों की बात कर रही हूँ. इट मीन्स मोहन एंड सोहन बोथ आर लिव इन द सेम नेबरहुड. ओके, सेम क्वालिटीज यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भी सेम, मतलब दोनों सेम नेबरहुड में रहते हैं, तो सेम पैरामीटर को डिफाइन कर रही हूँ. ओके, सो हियर हम इसके लिए एंड कंजंक्शन हम प्रिफर करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, टीना इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट. व्हाट इज दैट, टीना इज टॉल. इसकी एक क्वालिटी मुझे यहाँ पे पता चली टीना के बारे में, कि टीना की क्वालिटी क्या है, टीना इज टॉल, वो काफी टॉल है. और उसकी जो सिस्टर है, हर सिस्टर इज शॉर्ट, लेकिन उसकी सिस्टर अगर हम उसे टीना से कंपेयर करें, सो वो इतनी टॉल नहीं है, वो उससे शॉर्ट है. तो आप यहाँ पर देखोगे कि हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द अपोजिट इंफॉर्मेशन. ओके, मैं यहाँ पे अपोजिट इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ. सो द सेंटेंस जो है हमारा यहाँ पे, जहाँ पे टीना इज टॉल, एक तरफ तो मैं टीना की हाइट के बारे में बता रही हूँ कि टीना काफी अच्छी हाइटेड है, काफी टॉल है, बट लेकिन, है ना, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो कैसी है, शॉर्ट है, उसकी इतनी हाइट नहीं है, मतलब शी इज नॉट टॉलर, है ना, टॉलर मोर देन द टीना. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बट यूज करेंगे कि टीना इज टॉल, टीना तो काफी टॉल है, टीना लंबी है, बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, लेकिन उसके सिस्टर क्या है, शॉर्ट है. तो हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं. क्लियर, मतलब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बात कर रही हूँ, कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन. क्लियर. तो हमारा जो बट है, बट इज यूज टू ऐड द कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन. जो बट है हमारा, वो हमारा यूज होता है टू ऐड द कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन. और वी कैन से दैट जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट इन द अपोजिट वे, अपोजिट डायरेक्शन में बात करते हैं, अपोजिट क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज द बट. ओके. सो third, third example, just look at the third example. I like Ayushi because she is a hard working student. अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जो है मेरा, आई लाइक आयुषी, दिस इज माई फर्स्ट सेंटेंस, मेरा फर्स्ट क्लॉज है यहाँ पे, ये मान लो कंप्लीट हो गया. आई लाइक आयुषी, मुझे आयुषी को मैं पसंद करती हूँ. सेकेंड सेंटेंस है आपका, शी इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है. नाउ दीज बोथ आर द डिफरेंट सेंटेंसेस, बट आई कैन टर्न इट इनटू द वन सेंटेंस विथ हेल्प ऑफ द कंजंक्शन. और वो कंजंक्शन मैंने जो यहाँ पे यूज किया है, दैट इज बिकॉज. क्या है वो कंजंक्शन, बिकॉज. तो बिकॉज इट शोज द रीजन, इट प्रोवाइड द रीजन, है ना. डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. आप इन्हें ये तीनों सेंटेंसेस देखें, और हर तीनों सेंटेंसेस में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंजंक्शंस यूज किए हैं. तो व्हाट वी हैव डन हियर, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को डिफरेंट कंजंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, सो हियर वी कैन से दैट, ओके, वी कैन से दैट कि जो हमारे कंजंक्शंस जो हमने यूज किए हैं, है ना, लाइक एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, विच प्रोवाइड्स द रीजन, है ना,
regarding the statement जो भी आपको given है. So all these are used to join the one sentence to another. ये सभी conjunctions एक दूसरे sentences को आपस में join करने के लिए connect करते हैं, हम use करते हैं. And these words that join the different ideas together are termed as the conjunctions. Clear? So on the basis of that, whatever we had discussed till now, we can say that conjunctions is a word that joins the nouns or the verbs or the sentences or the phrases or the clauses. We can say that. Clear? तो उस जितना भी अभी तक हमने देखा है उस बेसिस पे हम अगर कंजंक्शन की डेफिनेशन देखें या कंजंक्शंस क्या होते हैं उसको समझें, तो कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, जो नाउन को ज्वाइन करते हैं, जो वर्ब्स को ज्वाइन करते हैं, जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. ओके, विच join the different ideas together, similar things to enhance the clarity of the sentences. That is the more and much important rule of the conjunctions. Okay, so it was a very short introduction I have given you about the conjunctions. ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस एग्जांपल्स के तरफ. सो वी विल गो थ्रू ऑल दीज प्रैक्टिस एग्जांपल एंड द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, so I'm sure that after watching this video, there would not be any kind of the queries and the doubts regarding the conjunctions in your mind. Okay, so just pay your attention here. Okay, our first sentence, Rohit is honest, Rohit is kind. अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रोहित के बारे में बात कर रही हूँ. देयर इज ओनली द वन सब्जेक्ट वन पर्सन एंड द बोथ सेंटेंसेस है ना. आप देखोगे मेरा सब्जेक्ट क्या है, सेम है, दैट इज द रोहित. अब फर्स्ट सेंटेंस में मैंने रोहित की क्वालिटी बताई है कि रोहित कैसा है, रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित इज वेरी ऑनेस्ट, मतलब रोहित काफी ईमानदार है, रोहित ऑनेस्ट बॉय है. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस अगेन द रोहित इज काइंड, रोहित क्या है, काइंड है, बहुत ज्यादा काइंडली है, काइंडली इन द नेचर. So in the both these sentences, I'm talking about the Rohit, about the qualities of the Rohit. मतलब मैं similar चीजों के बारे में बात कर रही हूँ. I'm talking about the same thing. It means I try to define the same parameter. मैं यहाँ पे same parameter को define कर रही हूँ. That is the Rohit. कि रोहित honest भी है और kind भी है. ठीक है. So यहाँ पे उसकी दोनों qualities हैं. These both are the two qualities of about the Rohit. तो ऑनेस्ट और काइंड, और इसको मैं कनेक्ट किया है मैंने एंड कंजंक्शन से. क्लियर? सो when you talk about the similar things or the similar ideas, you want to be joined together the similar ideas, in that case we use the conjunction and. Clear? second sentence, Sunita is beautiful, Sunita beautiful है, Sunita is cruel. Okay, तो in the first sentence मैं सुनीता की क्वालिटी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ कि सुनीता इज ब्यूटीफुल. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में मैं ये भी कह रही हूँ कि सुनीता की मैं मतलब एक कमी भी बता रही हूँ, बट सुनीता कैसी है, सुनीता इज वेरी क्रूअल, मतलब बहुत ही क्रूअल है. ठीक है, बहुत ही कपटी है. तो फर्स्ट सेंटेंस इज वेरी पॉजिटिव, बट सेकेंड सेंटेंस आप देखोगे दैट इज निगेटिव, दैट हैव अ निगेटिव कमेंट है ना, या निगेटिव जो भी है मेरा ओपिनियन है सुनीता को लेके. सो हियर वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रास्ट. ओके, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बात की है, मैं अपोजिट वे में बात कर रही हूँ. सो हियर वी कनेक्ट इट विद द बट. सो आई कैन से दैट सुनीता इज ब्यूटिफुल बट क्रूअल. सुनीता ब्यूटीफुल तो है लेकिन क्या है, cruel है. Clear? So but already I told you but is used to add the contrasting information which has given in the sentence. थर्ड सेंटेंस आप देखोगे, डू यू वांट कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है ना, क्या नहीं, क्या तुम कॉफी लेना चाहोगे. ठीक है, डू यू वांट कॉफी, डू यू वांट टी, मतलब हियर इन दिस सेंटेंस यू हैव द टू ऑप्शंस. ओके, टू चॉइसेस यू हैव. डू यू वांट कॉफी, क्या तुम कॉफी लेना पसंद करते हो, या डू यू वांट टी, या तुम चाय लेना पसंद करोगे, टी लेना पसंद करोगे. सो व्हेन यू हैव द टू ऑप्शंस एंड इन दैट केस यू वांट टू चूज ओनली द वन ऑप्शन, आपको जब दो ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है तो आप यहाँ पे कंजंक्शन यूज करेंगे और, एंड you can convert these two sentences into the one sentence. Okay, so do you want coffee or tea? Okay, what would you say? You would say do you want coffee or tea? तुम क्या लेना पसंद करोगे, तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे. क्लियर? जैसे अगर मैं कहूँ आई लाइक मैंगोज, आई लाइक फॉर एग्जाम्पल बेरीज.
ठीक है, आई लाइक मैंगोज एंड आई लाइक बेरीज इज फॉर, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि आई लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज पसंद है, आई लाइक मैंगोज। और सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा आई लाइक बेरीज। ठीक है, अब आई लाइक, ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सेम पैरामीटर को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी लाइकिंग के बारे में, अपने लाइक्स के बारे में बता रही हूँ कि मुझे क्या पसंद है। तो व्हाट आई वुड से, आई लाइक मैंगोज एंड बेरीज, आई लाइक मैंगोज एंड बेरीज, मुझे दोनों पसंद है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे कोई और चॉइसेस होती कि मुझे मैंगोज चाहिए या एप्पल चाहिए या बेरीज चाहिए, है ना, कि डू यू वांट मैंगोज और डू यू वांट बेरीज, तो मैं क्या कहूंगी, डू यू वांट मैंगोज और बेरीज। आया समझ में? डू यू लाइक, या कुछ भी हो सकता है, जैसा भी आपको सिचुएशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कंजंक्शंस का यूज करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, I trust him, he speak the truth. This is your first sentence, I trust him. And second आपको क्या given है, he speaks the truth, वो सच बोलता है। तो I trust him, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, because he speaks the truth, क्योंकि वो सच बोलता है। तो because, again the because provides the reason, okay? क्योंकि यहाँ पे आपको रीजन पता चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे बिकॉज आप यूज किया है आपने एज ए कंजंक्शन। आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं उस पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि वह सच बोलता है। ओके, सो बिकॉज का यूज आ गया, अभी आपको समझ में क्लियर हो गया कि बिकॉज कब यूज करना है ना, वेदर एंड हाउ यू हैव टू यूज द बिकॉज, इन विच सिचुएशन यू हैव टू यूज द बट, और एंड का क्या यूज है। ओके, सो दीज एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल्स आई हैव सिलेक्टेड ओवर हियर, दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही, वर्क हार्ड यू विल फेल। देखिए ये भी सिमिलर सेंटेंस है जो ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड, है ना, इन आवर प्रीवियस स्लाइड, सेम एग्जाम्पल है। वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, यही कहोगे आप, है ना, यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन है, यू हैव द टू चॉइसेस वंस अगेन, वर्क हार्ड, या तो तुम मेहनत कर लो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। सो आप इसे कैसे कहोगे, विथ हेल्प ऑफ द कंजंक्शन और, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क कर लो, या तो यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। या तो तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा या फिर तुम्हें फेल होना होगा, है ना, तुम फेल होना पड़ेगा। तो आपके पास दो चॉइसेस है। ठीक है, तो जब भी whenever you have the two options, in that case we use the conjunction or। clear? Sixth one, I love dogs, आई लव डॉग्स, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। एंड सेकेंड है आई हेट कैट्स। मतलब आप फर्स्ट उसमें आप बहुत ही पॉजिटिव रिमार्क आप दे रहे हो डॉग्स के लिए कि आपको डॉग्स काफी पसंद है, आप लव करते हो, यू जस्ट लव द डॉग्स। बट सेकेंड सेंटेंस में आप यहाँ देखोगे, हियर यू गिव द, यू हैव अ वेरी निगेटिव रिमार्क और निगेटिव ओपिनियन, निगेटिव परसेप्शन, वी कैन से दैट अबाउट द कैट्स, कि आप उसे, आई लव डॉग्स, मुझे डॉग्स तो बहुत पसंद है, आई हेट कैट्स, लेकिन मुझे कैट्स से बहुत नफरत है। तो मेरा मेरा जो कैट्स को लेके यहाँ ओपिनियन है वो बहुत ही निगेटिव है। सो हियर अगेन वंस अगेन वी टॉक अबाउट द अपोजिट थिंग्स, कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो वी विल कनेक्ट इट विद द बट। ओके, आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट्स, लेकिन मुझे कैट्स से बहुत नफरत है। क्लियर? सो this was all about the conjunction, students, in which today's video we have discussed about the short introduction of the conjunctions, जिसमें हमने समझा कि conjunctions क्या होते हैं। So we have seen that conjunctions are the words that join the two sentences, two nouns, two phrases, or we can say the two verbs को join करता है। ठीक है, जो भी conjunction है ये क्या रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में, व्हाट इज द मेन विटल रोल प्लेड बाय द कंजंक्शंस, है ना, एंड हाउ इट कैन इनहेंस द क्लियरिटी ऑफ द सेंटेंसेस एंड विच मेक्स द मोर प्रिसाइज एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे एक मिल जाती है। इजिली यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस and you can join the sentences with help of the conjunctions. So all these things we had seen today through this video. So this was all about from my side about the conjunctions. Now in the next video we will be going to discuss about the types of the conjunctions. There
देयर आर द लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ द कंजंक्शंस और उन्हें कब कैसे यूज करना है. सो वी विल बी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द अनदर वीडियो. अगर मैं इसी में डिस्कस करूंगी तो वीडियो हमारा काफी लॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स. आई होप दैट ऑल द थिंग्स क्लियर टू यू वॉट एवर वी हैड डिस्कस्ड टुडे. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नाउ आई एम गोइंग टू साइनिंग ऑफ. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. कितने मिनट की बन गई सर ये? 26 मिनट? हम्म। मतलब कट पीट की 20 मिनट की हो जाएगी.